Hello guys, I am from Gaugras, Mathsab. I am going to discuss subject and predicate on English grammar. Let us begin. Here I shall write let us examine this sentence. Let us examine this sentence. Colon and hyphen. Let us examine this sentence. Colon and hyphen. This is colon, this is hyphen. हम एक सेंटेंस है, वाक्य है, उसके बारे में एग्जामिन करने जा रहे हैं, छानबीन करने जा रहे हैं. John threw a stone. John threw a stone. John threw a stone. This is the English version. Now I shall translate John threw a stone into Hindi. Here I shall write John एक पत्थर फेंका. Note of interrogation. No, not note of interrogation will not be there. Affirmative sentence is available here. John threw a stone. John एक पत्थर फेंका. तो this John will be subject. Threw a stone will be predicate. John threw a stone. John एक पत्थर फेंका. John will be the subject. Threw a stone will be predicate. This thing you have to remember. Now John proper noun. You must remember John proper noun. John एक व्यक्ति का नाम है जो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा. जॉन एक व्यक्ति का नाम है. जॉन प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है. और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा जॉन सब्जेक्ट है. जॉन क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता. जॉन थ्रू ए स्टोन. जॉन ने एक पत्थर फेंका. जॉन विल बी द सब्जेक्ट. थ्रू ए स्टोन विल बी प्रेडिकेट. जॉन एक व्यक्ति का नाम है जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जो प्रॉपर नाउन कहलाता है. सब्जेक्ट कौन है? जॉन. कर्ता ने
कर्ता ने, कर्ता, कर्ता कौन है? जान है। कर्ता कौन है? जान है। तो कर्ता ने, कर्ता ने, जान ने एक पत्थर फेंका, जान ने, कर्ता ने, जान विल बी द सब्जेक्ट कर्ता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता ने, कर्ता सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। दैट इज क्लियर? जान is the answer. John is the answer to the question. John is the answer to the question. जान क्या है? उत्तर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? I am going to tell. Who threw a stone? Who? Question. Who threw a stone? Note of interrogation. John is the answer to the question. जान उस प्रश्न का उत्तर है। जान क्या है? उत्तर है प्रश्न का। प्रश्न क्या है? हु थ्रू ए स्टोन? कौन एक पत्थर फेंका? हम प्रश्न करेंगे द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हु थ्रू ए स्टोन? आंसर क्या की देगी? जान ने फेंका। जान विल बी द आंसर। दैट्स वाई सो जान is the subject. Remember this one. किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में हु लगा दो। किसी भी सेंटेंस में हु लगा दो। हु लगाने से जो भी आंसर आता है दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? Now come out to predicate here. This is subject. Subject. Now come out to predicate. Predicate. Subject I have discussed here. Now come on to predicate. Predicate I shall explain here the group of words. What is predicate? The group of words. The group of words means शब्दों का समूह। शब्दों का समूह है predicate. The group of words is the predicate. Is the predicate. What is predicate? Predicate is the group of the words. Group of the words. The group of the words is the predicate. शब्दों के समूह ही predicate. The predicate contains. The predicate. predicate में क्या क्या होगा? That you should know. Predicate
contains predicate contains the verb through, the verb through. Group of words which is the predicate. Predicate contains the verb through. तो predicate में क्या आएगा? verb through. तो predicate क्या हो जाएगा? three-way stone. predicate goes to three-way stone. predicate goes to three-way stone. three-way stone क्या हो जाएगा? predicate हो जाएगा और जान क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. predicate contains the verb through and other words after the main verb. मेन वर्ब क्या है? थ्रू है. मेन वर्ब क्या है? थ्रू है ना. मेन वर्ब यह थ्रू है. तो मेन वर्ब थ्रू के बाद प्रेडिकेट कंटेंट द वर्ब थ्रू. तो प्रेडिकेट में तो थ्रू होगा ही, वर्ब थ्रू होगा. थ्रू क्या है? वर्ब है. एंड अदर वर्ड्स आफ्टर द मेन वर्ब. मेन वर्ब थ्रू के बाद अदर वर्ड्स ए स्टोन है, अदर वर्ड ए स्टोन है, वो कंटेंट करेगा. दैट विल द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट. यू मस्ट रिमेंबर. So here I have discussed subject and predicate on English grammar. Let us examine this sentence. John threw a stone. John ने एक पत्थर फेंका. John will be the subject. Threw a stone will be the predicate. You have to remember this one. Subject I am going to explain. John proper noun. Subject है करता है. जान क्या है? करता है. कर्ता ने, जान ने. सब्जेक्ट हो गया करता. जान इज द आंसर टू द क्वेश्चन. प्रश्न बनाओ. हु थ्रू ए स्टोन? कौन एक पत्थर फेंका? उत्तर क्या देगी? जान ने. जान विल बी द सब्जेक्ट. क्लियर? नाउ कम आउट टू प्रीडिकेट. ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द प्रीडिकेट. शब्दों का समूह ही प्रीडिकेट है. प्रीडिकेट कंटेन द वर्ब थ्रू. थ्रू वर्ब कंटेन करेगा एंड अदर वर्ड आफ्टर द मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है? थ्रू. तो मेन वर्ब के बाद आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो भी अदर वर्ड्स आते हैं वो कंटेन करेगा और मेन वर्ब करते. मेन वर्ब क्या है? थ्रू. एंड अदर वर्ड आफ्टर द मेन वर्ब. मेन वर्ब थ्रू के बाद अदर वर्ड जो ए स्टोन आया है, तो थ्रू ए स्टोन विल द प्रीडिकेट. तो प्रीडिकेट थ्रू विल बी ए स्टोन विल बी द प्रीडिकेट. नाउ next thing I am going to discuss here, the noun case. The noun case, very important thing is there. The noun case. I am going to discuss other concept, the noun case. Noun means संज्ञा. Noun means संज्ञा. Noun संज्ञा. Noun संज्ञा. Noun means संज्ञा. Noun is the name of a person, place or thing. एक व्यक्ति का नाम, एक जगह का नाम,
या एक वस्तु का नाम ही नाउन है। और नाउन क्या है? संज्ञा है। नाउन संज्ञा। केस क्या है? कारक। केस क्या है? कारक। केस क्या है? कारक। केस की हिंदी होती है कारक। तो हिंदी में जस्ट आई शैल एक्सप्लेन हियर कारक। हियर आई शैल राइट कारक। केस कारक। In Hindi, I am going to explain कारक। कारक मीन्स काम करने वाला, जो मेन होता है, जो काम करता है उसी को कारक। जो काम करता है उस काम का इफेक्ट दूसरे से होता है या दूसरे द्वारा काम कराया जाता है, वही जो है कारक होता है। जड़ जिससे कुछ पैदा होता है वो कारक होता है। तो हिंदी में कर्ता कारक क्या है? हिंदी में कर्ता कारक। कर्ता कारक हिंदी में बोलते हैं। कर्ता मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया तो कर्ता कारक। कर्ता बने सब्जेक्ट और कारक बने केस। तो कर्ता कारक मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो केस होगा दैट विल बी नोन एज कर्ता कारक। तो कर्ता कारक। उसके बाद क्या होता है? कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। क्या होता है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से तो करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्ता क्या कहता है? कर्ता ने कर्ता क्या कहेगा? कर्ता कारक क्या कहेगा? ने। कर्ता कारक क्या बताएगा? ने। कर्ता कारक ने मतलब कर्ता ने कर्म क्या बताएगा? कर्म को। कर्ता ने कर्म को है ये वर्ड। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। ये हिंदी में मेन कारक होते हैं। ऐसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदाय, आपादान, आपादान में से हो गया। तो हिंदी में या इंग्लिश के हिंदी के या संस्कृत के विस्तृत रूप में वी शैल स्टडी। दैट इज नॉट माई फील्ड हियर। I shall take only the basic things related to English grammar. कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। ये तीनों कारक होते हैं। संबंध कारक भी होता है। क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? का के। क्या होता है? का के। राम का किताब, मोहन का पेन। राम का किताब, किताब किसका है? राम का। तो संबंध बता दिया। बच्चों की खिलौना, का के की, ये संबंध कारक हो गए। कर्ण कारक से द्वारा आ गया। कर्म कारक को बताएगा। कर्ता कारक ने को बताएगा। ये हिंदी में जानना जरूरी है, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। दिस इज हिंदी पार्ट। नोट दिस वन।
Now I am going to discuss here the noun case. Noun means संज्ञा, case means कारक. Now I shall take here first कारक here. First I shall take A, para A, nominative case. क्या लेंगे हम? Nominative. Remember the spelling also. Nominative. Nominative case. I have taken here nominative case. The spelling of nominative: Nominative. Nominative case. Nominative case means कर्ता कारक. कौन सा कारक है? कर्ता कारक. कर्ता कारक क्या लेगा? नहीं लेगा भाई. क्या लेगा? नहीं लेगा. तो नॉमिनेटिव केस क्या है? कर्ता कारक है, आने को लेगा. वेरी सिंपल. अब हम क्या कहेंगे, इसका डिफिनीशन बताएंगे ना. डिफिनीशन: व्हेन ए नाउन आर प्रोनाउन, हियर आई शैल राइट व्हेन ए नाउन आर प्रोनाउन. ठीक है. व्हेन ए नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा. अब प्रोनाउन मीन्स क्या होता है मालूम है? प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. क्या होता है? सर्वनाम. प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम. When a noun or pronoun. Noun. What is noun? Noun is the name of a person, place or a thing. Noun संज्ञा एक व्यक्ति का नाम है, या एक वस्तु का नाम है, या एक जगह की नाम है. उसको संज्ञा बोलते हैं. अंग्रेजी में नाउन कहलाता है. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम. नाउन के बदले में राम. राम क्या है? प्रॉपर नाउन. तो राम के बदले में हम जो भी वर्ड का प्रयोग करेंगे, दैट विल बी नोन एज सर्वनाम. तो नाउन के बदले में जो वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, दैट विल नोन एज प्रोनाउन. Whatever words you use in place of noun, those words will be known as pronoun. Pronoun is a word. A pronoun is a word which is used in place of a noun. क्या है? Pronoun is a word. A pronoun is a word. Pronoun एक शब्द है which is used in place of a noun. एक नाउन के बदले में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन. जैसे राम. राम क्या है? प्रॉपर नाउन है. राम के बदले में कोई वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? वह. राम के बदले में वह करेंगे, तो वह की अंग्रेजी एक ही हो गया. तो ही विल बी द प्रोनाउन. तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज, एक नाउन, एक संज्ञा या एक सर्वनाम. व्हेन ए नाउन आर ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट. यही वर्ड है मेन, सब्जेक्ट. When a noun or pronoun is used as the subject of, subject किसका होता है? verb का. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, then
that noun or pronoun, that noun and pronoun is said to be in the nominative case. In the nominative case. ये डिफिनेशन नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक ने व्हेन ए नाउन आर ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जब ये कंडीशन होगा तो वह नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस। दैट इज क्लियर? नाउ we shall understand nominative case with the help of example. Here I shall write example. Example देखो। Before the taking the example, I shall explain one thing. To find the nominative, to find the nominative, हमें क्या प्राप्त करना है? नॉमिनेटिव। टू फाइंड द नॉमिनेटिव, हमें कर्ता कारक को प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे? टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु, क्या करेंगे? हु। Put who, note of interrogation, or what, note of interrogation. To find a nominative, put who, note of interrogation, or what, note of interrogation. Before the verb, before the verb. हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? किसी भी वाक्य में कर्ता कारक नॉमिनेटिव को प्राप्त करने के लिए टू फाइंड द नॉमिनेटिव क्या करेंगे? पुट रख दो, क्या? हु रखो। हु माने कौन, हु मीन्स कौन, व्हाट माने क्या। तो हु मीन्स कौन होगा? हु मीन्स कौन, व्हाट माने क्या। To find a nominative, put who, कौन, or what before the verb. वर्ब के पहले रख दो। वर्ब के पहले क्या रखेंगे? who रख दो और या what रख दो। दोनों में से कोई एक रखना, तो आराम से कर्ता कारक नॉमिनेटिव प्राप्त करेंगे। सही है? ये हो गया। नाउ कम आउट टू एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करेंगे ना इसको। ये तो डिफिनेशन हो गया, अब एक्सप्लेनेशन पर आ जाए। ये पूरा डिफिनेशन है। नाउ कम आउट टू एक्सप्लेनेशन। नाउ टेक द सेम सेंटेंस एज आई हैव टेकन इन द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। What is that sentence? Can you tell? वही वाक्य ले लो जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट में लिया। Can you tell what sentence should I take here? John threw a stone. John threw a stone. ये हमने ले लिया। दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस आई हैव टेकन। असर्टिव सेंटेंस यू कैन से। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यू कैन से। जॉन थ्रू ए स्टोन, हमने ये वाक्य लिया। क्या लिया? जॉन थ्रू ए
स्टोन। क्वेश्चन बनाओ, इस पे क्वेश्चन लिखो, यहाँ क्वेश्चन बनाओ। जॉन थ्री ए स्टोन, क्वेश्चन बनाओ। किससे क्वेश्चन बनाओगे? हु से बनाओ, व्हाट से बनाओ। बनाओ। वर्ब के पहले लिखा है ना, बिफोर द वर्ब। वर्ब क्या है? थ्रू। थ्रू के पहले वर्ब क्या है? बिफोर द वर्ब। यह लिखा है ना, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। वर्ब के पहले, वर्ब हियर, वर्ब इज थ्रू, तो थ्रू के पहले हु लगाओ या व्हाट लगाओ, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो मान लो कि हम व्हाट लगाते हैं, तो व्हाट थ्रू ए स्टोन। व्हाट मैंने क्या, तो क्या फेंका एक स्टोन। सेंटेंस समझ में आ रहा है? नहीं नो। हम कहे क्या एक स्टोन फेंका, कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं। क्या एक पत्थर फेंका, क्या पत्थर, क्या एक पत्थर फेंका, तो हम कह सकते यस, यही कहने। क्या एक पत्थर फेंका, क्या एक पत्थर फेंका, हम कहते कि यस। कोई मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है, यस तो भाई नॉमिनेटिव निकले, तो हम व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हु लगाओ। तो वर्ब थ्रू के पहले हम क्या लगा देंगे? हु। तो क्या बन जाएगा? हु थ्रू ए स्टोन। क्वेश्चन कर, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हु थ्रू ए स्टोन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन बना है, हु थ्रू ए स्टोन, कौन एक पत्थर फेंका। आंसर प्राप्त करो, आंसर प्राप्त बताओ। हु थ्रू ए स्टोन, कौन एक पत्थर फेंका। कौन फेंका? जान ने फेंका। तो आंसर क्या मिला? जान। वर्ब यह लिखा बिफोर द वर्ब, थ्रू के पहले हमने हु लगा दिया, तो नॉमिनेटिव केस प्राप्त करेंगे। तो वर्ब थ्रू है, तो थ्रू के पहले हमने क्या लगा लिया? हु। तो हु थ्रू ए स्टोन, जान। आंसर मिला जान। तो क्या हम लिखेंगे यहां? जान क्या हो जाएगा? जान होगा सब्जेक्ट। जान क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और क्या होगा ये? जान क्या है? प्रॉपर नाउन। याद रखना, जान क्या है? प्रॉपर नाउन। जान प्रॉपर नाउन है। जान सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर नाउन है, और केस क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक। ये बताया ना, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता कारक क्या बताता है? ने। तो यह लिखा जान ने एक पत्थर फेंका, तो कौन पत्थर फेंका? आंसर आएगा जान। जान विल बी द सब्जेक्ट which is proper noun, case will be the nominative case. This is the proper explanation I have done here. Nominative case, कर्ता कारक which contains ने, when a noun and pronoun एक संज्ञा या एक सर्वनाम का प्रयोग होता है एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, then that noun or pronoun, वह संज्ञा या सर्वनाम is said to be the nominative case, nominative case में चला जाता है। To find a nominative case, put who, who means कौन, or what means क्या, before the verb, verb के पहले, this is verb, before the verb, put here who, क्वेश्चन बनाया who threw a stone, answer you have got John. John will be the subject, that is proper noun, case will be the nominative case. That is a proper explanation of nominative case I have done here. Already explained here subject and predicate. Predicate here I have explained. Group of words is the predicate.
शब्दों के समूह ही प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट कंटेंट द वर्ब थ्रू। प्रीडिकेट क्या कंटेंट करेगा? वर्ब थ्रू। यह वर्ब थ्रू कंटेंट करेगा अदर वर्ड आफ्टर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो दूसरे वर्ड्स आते हैं वो कंटेंट करेगा, और मेन वर्ब भी कंटेंट करेगा, और मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो भी कंटेंट करेगा। तो प्रीडिकेट क्या बन जाएगा? थ्री वे स्टोन। थ्री वे स्टोन विल बी द प्रीडिकेट। जॉन थ्री वे स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका। जॉन विल बी द सब्जेक्ट, थ्री वे स्टोन विल बी प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जॉन प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है। कर्ता जॉन, कर्ता ने, सब्जेक्ट जॉन। जॉन इज द आंसर टू द क्वेश्चन। वही सेम चीज आ गया नॉमिनेटिव केस में। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। क्वेश्चन बना हु थ्रू ए स्टोन, आंसर यू हैव गॉट जॉन, सो जॉन विल बी द सब्जेक्ट। हियर इन हिंदी आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। केस मीन्स कारक। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, कर्ण कारक से द्वारा। राम ने रावण को मारा एक तीर से। लुक आउट द सेंटेंस हियर। आई शैल एक्सप्लेन दिस वन इन डिटेल लेटर ऑन, बट टाइम बिंग आई एम गोइंग टू। राम ने रावण को एक तीर से मारा। राम ने रावण को। जस्ट हियर आई शैल राइट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एक्स्ट्रा थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। राम ने रावण को, राम ने रावण को एक तीर से मारा। अब देखो इसमें सब समझ में आ जाएगा। राम ने, कौन मारा? राम ने। राम ने मतलब कर्ता ने, तो राम क्या हो गया? कर्ता। कर्ता मैंने सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? रावण को, किसको मारा? रावण को। तो रावण को, रावण किस में चला जाएगा? कर्म कारक को में, तो रावण हो गया कर्म। एक तीर से, किससे मारा? एक तीर से मारा, एक तीर के द्वारा मारा। तो ये किसमें कारक है? कारक। क्या मिल गया? कारण। कारक हो गया, तीर के द्वारा कारण हो गया। कारण कारक, कारण करण कारक, करण कारक के द्वारा। अब मारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। मारा क्या हो गया? वर्ब। वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया। वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया। समझ में आया? राम किसमें है? कर्ता कारक। सब्जेक्ट रावण क्या है? कर्म कारक। तो रावण विल बी ऑब्जेक्ट। आई शैल डिस्कस ऑब्जेक्टिव केस लेटर ऑन आफ्टर दिस। कर्ण कारक के द्वारा, विथ आयन एरो आई शैल राइट। और मारा, मारा मीन्स, दिस इज द हिंदी translation. I shall translate this sentence in English. English, you know. Ram killed. Ram killed. राम ने मारा। Kill, killed, killed. राम ने मारा। राम killed. किसको मारा? रावण को। राम killed रावण। किसके द्वारा मारा? With आयन एरो, एक तीर। आयन एरो माने एक तीर। तो पहले क्या आया? कर्ता, सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिया? किल्ड। सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या लिया? वर्ब। वर्ब के बाद क्या लिया? कर्म लिया, ऑब्जेक्ट लिया। राम किल्ड रावण। द राम विल बी सब्जेक्ट, किल्ड विल बी वर्ब, एंड रावण विल बी द ऑब्जेक्ट, एंड with an arrow will be the complement. Later I shall discuss in detail. Till now, okay, thanks. कुछ बातें समझ आ रही?